वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी आर बैक अगेन एंड टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर आफ्टर MNS CBT exam. Means after the results of your CBT you have to face interview along with your medical test. Yes, this is mandatory test for all those candidates who have cleared their CBT exam and they are in the merit list of the result. Means those students who have cleared the cutoff, they are going to face their interview along with medical test. Okay, but before proceeding I want to tell you that if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. Please don't forget to share your valuable comments, hit the like button. जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे हम उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे नए नए वीडियोस बनाने को, नए नए टाइप्स के वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके डाउट्स को हम उतनी ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। लुक, MNS एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बारे में अभी भी बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं पता है एंड देयर आर स्टिल मेनी कन्फ्यूजन्स इन देयर माइंड। सो आई एम हेयर टू क्लियर आउट every confusion of every candidate. I'll try my best to remove all your doubts. Okay, if you want to join us, you can join our Telegram channel, you can subscribe our Telegram channel, you can follow us on Instagram, Facebook. Yes. Okay, now proceeding. Many of you have texted me on WhatsApp about the medical procedure. You have asked me that after the clearing interview then you have to face the medical procedure or medical test or along with it. So let me be very clear about it. When the result of your CBT is announced, you are allotted a date and the center where your interview and your medical test is going to be performed. Okay, so along with the merit list of the CBT exam, a date, on that particular date you have to report on at the center, and the center where your medical test and your interview is going to be performed. Okay, so earlier there were two centers, Pune and Delhi, for the interview and medical test. Hopefully they will increase the number of centers for medical and interview this year, because this is corona pandemic, so nothing is certain. They can increase the centers for interview and medical procedure so that they can deal with the crowd appropriately. Okay, so but earlier there were two centers, they were Delhi and Pune. Okay, so a date which was allotted to you, you have to be there on that same date. You have to report at the center on the same date. The complete medical procedure along with your interview is of 5 to 7 days. Okay, so be ready for this stay of 5 to 7 days. They will not arrange anything for your stay, they'll not provide anything for your food lodgings. These all the things are managed by you. Okay, so you have to manage your stay, your food and everything. You have to report early morning on every day or whenever they are calling you for the medical procedure. In between the complete procedure of 5 to 7 days, on one day there will be your interview. अधिकतर क्या होता है कि जिस दिन आपको रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाता है, ऑन द सेम डे यू आर हैविंग योर इंटरव्यू, बट मे बी ज़्यादा क्राउड की वजह से जो भी आपका पूरा प्रोसीजर है 5 to 7 डेज़ का, उनमें से किसी भी एक दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जा सकता है। बट फिर से बता दूँ, ये मत सोचिएगा कि अगर आपका इंटरव्यू पहले दिन नहीं हुआ है तो आपको जो आपका मेडिकल प्रोसीजर है वो डे 1 से स्टार्ट नहीं होगा। चाहे आपका इंटरव्यू फर्स्ट डे हो या ना हो, योर मेडिकल विल स्टार्ट ऑन द सेम डे। ओके, अब
आज जो हम मेडिकल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद योर टीथ एंड आई, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे कई बच्चों ने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मेडिकल प्रोसीजर ऑफ आई एंड टीथ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि क्या है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है, कैसे क्या टेस्ट होता है। तो बेसिकली आज हम इन दोनों आपके ऑर्गन्स के मेडिकल टेस्ट पे बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द आई। देखो, बहुत से बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि स्पेक्स आर अलाउड और नॉट while interviewing, while facing the interview or while giving the medical test, specs are allowed or not. So let me be very clear, if you are wearing specs, if you wear spec, that is, there is nothing to be worried about it. Okay, specs are allowed, आप पहन कर जाइए। while in fact while facing the interview also you can wear your specs. Okay, मेडिकल टेस्ट में भी आप जब आई मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो, आई टेस्ट के लिए जाते हो, तब भी आप अपने स्पेक्स को पहन के जाइए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द आई टेस्ट जब आप स्पेक्स पहने हुए हो तो दैट इज़ लिटिल बिट ईजियर फॉर द पर्सन हु इज़ चेकिंग योर आइज़। वो आपके उस चश्मे के नंबर को देख कर ही आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए थोड़ा ईजी प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए आप अगर चश्मे पहनते हो तो अच्छी बात है, उन्हें रेगुलर पहने रहिए और पहन कर जाइए। चश्मों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं बच्चे कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, हमें आर दे अलाउड और नॉट। देखो, आपको आई की एक सर्टेन पावर इज़ अलाउड फॉर एवरी मेडिकल टेस्ट, for every army wing or you can say navy wing or you can say air force wing, हर एक चीज़ में एक certain power allowed है। तो here for the MNS also certain eye power is allowed which is 2.5 diopter to 3 diopter। अगर आपकी पावर 2 से 3 डायोप्टर के बीच में वेरी कर रही है, मीन्स अगर सपोज़ आपकी पावर आई साइट की पावर 0.7 है, 7.5 है, 0.5 है, 1.5 है, 2.5 और 3 भी है, एक हद तक वो 3 डायोप्टर भी अलाउ कर देते हैं। तो अगर आपकी आई साइट इतनी वीक है या पावर आपकी 2 to 3 डायोप्टर के बीच में है, देन नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट, यू आर परफेक्टली फाइन। ओके, आपको उसमें टेम्परेरी या फिर परमानेंट रिजेक्शन नहीं मिलेगा। आई थिंक नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि एक बार फिर से बता दूं, अगर आपकी पावर 2 to 3 डायोप्टर के बीच तक है, 0 to 3 डायोप्टर के बीच तक है, यानी 7.50 से लेकर 3 डायोप्टर के बीच में आपकी कोई भी आई साइट की पावर है, देन यू आर परफेक्टली फाइन फॉर द मेडिकल पर्पस। ओके, अब बात आती है कि प्लस हमें पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, प्लस है पावर, माइनस है पावर, तो इन सब से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एक आँख की पावर ज़्यादा है, दूसरी आँख की पावर कम है, ठीक है। फिर एक बार बता दूं कि चाहे आपकी पावर प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पास का कम दिखता है, आपको दूर का कम दिखता है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो आपकी पावर का रेंज है दैट इज़ 0 to 3, ये आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंडिविजुअल पावर्स को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि एक आँख की पावर कम है, दूसरे की ज़्यादा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर आपकी दोनों आँखों में पावर्स का देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, तो नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। फिर वही बात है कि जो रेंज की बात है वो फॉलो होनी चाहिए। और ऐसा देखने को नॉर्मल मेडिकल साइंसेज में वी हैवंट सीन कि इफ़ वन आई द पावर ऑफ वन आई इज़ 0.75 देन द पावर ऑफ अदर आई इज़ 6.5, ऐसा नहीं होता। इतना फ्लक्चुएशन, इतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए पावर इससे ज़्यादा है तो किस तरीके का रिजेक्शन मिलता है। आपको पूरे मेडिकल में चाहे किसी भी तरीके में आपको रिजेक्शन मिले, द प्राइमरी रिजेक्शन इज़ टेम्परेरी रिजेक्शन। सबसे पहले आपको टेम्परेरी रिजेक्शन ही मिलता है एंड यू आर गिवन द टाइम पीरियड ऑफ 42 डेज़। इन 42 डेज़ में अगर आप अपने उस वीक एरिया को सही करके फिर से अपील करते हो दैट येस आई एम विलिंग टू फेस द री मेडिकल टेस्ट,
देन आप कैपेबल होते हो फिर से मेडिकल प्रोसीजर से गुजरने के लिए। अगर आप टेम्परेरी रिजेक्शन के बाद ये क्लेम नहीं करते हैं कि यू आर विलिंग टू अपीयर फॉर द री मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपको री मेडिकल आपका नहीं होगा। तो बी वेरी क्लियर, जब आपसे वहाँ पूछा जाए कि आप अपील करेंगे 42 डेज़ के बाद मैं री मेडिकल के लिए या नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पर बहुत क्लियरली बताना होगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो अब एक चीज़ और इससे सामने आती है। सपोज़ करिए कि आपके पास अभी आपकी बॉडी में कोई डिफ़ेक्ट है थोड़ा सा, और आपको लगता है कि वो जब तक रिज़ल्ट आएगा तब तक ठीक हो जाएगा या उसे 5-10 दिनों में भी हम ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सोचकर मत बैठ जाइए, प्रिपरेशन करना मत छोड़ दीजिए कि हमारी बॉडी में तो डिफ़ेक्ट है और हम पहले ही आपको निकाल कर हमें मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत भी डिफ़ेक्ट है तो उसकी दवाई कराइए, इलाज करवाइए और उसे ठीक करिए, ठीक है, और आप वहाँ पर ठीक हो जाएंगे तब तक। नहीं तो 42 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद तक तो वो ठीक हो ही जाएगा और आप बहुत अच्छे से वहाँ पर क्लियर अपना पूरा प्रोसीजर कर पाएंगे। इसके बाद टीथ पर आते हैं। जनरली जो आपके चेक किया जाता है टीथ में, अगर आपको बच्चे कहते हैं मेरे पास मैसेज आता है मैम कैरीज़ है, ओके, एक टूथ के ऊपर दूसरा टूथ है, तो ये सब अलाउड है कि नहीं? दिस इज़ अलाउड। अगर आपकी टीथ में, बकल कैविटी में, आपके टीथ में थोड़ी बहुत कैविटीज़ हैं, कैरीज़ हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक टीथ के ऊपर दूसरा टीथ है तो भी आपको उसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दीज थिंग्स आर अलाउड। अब वहाँ पर चेक क्या होता है आपके डेंटल, उसमें डेंटल टेस्ट में आपके टूथ गैप्स चेक किए जाते हैं कि आपके पास कितने हैं, सॉकेट्स कितने हैं, आपके कितने टीथ हो सकते हैं। तो 22 to 28 डेंटल गैप्स आपके पास होने चाहिए। ओके, ये मिनिमम 22, मैक्सिमम 28-32 आपके हो सकते हैं। अगर आपके पास ये हैं, दैट इज़ यू आर कम्प्लीटली फ़ाइन। अब बात आती है कि चलो कैविटीज़ हैं, कैरीज़ हैं, उनका क्या करें? आप चाहें तो उन कैविटीज़ को फिल करा के अपना मेडिकल टेस्ट को फेस करने के लिए जा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कैविटीज़ के साथ वहाँ पे हमें मेडिकल फेस करना पड़े, तो आप चाहें तो आर्टिफिशियल फिलिंग करा के उसकी वहाँ पर जा सकते हैं। डेंटल में भी यही है। आपको अगर आप सम हाउ डेंटल में अनफिट होते हैं तो आपको प्राइमरी जो रिजेक्शन मिलता है दैट इज़ ऑफ 42 डेज़, यानी टेम्परेरी रिजेक्शन होता है, और उसके बाद आपको फिर से री अपील करना पड़ता है अपने री मेडिकल के लिए। तो दिस वॉज द प्रोसीजर फॉर आई टेस्ट एंड डेंटल टेस्ट। आई होप अभी तक मैंने इन दोनों सेक्शंस के आपको मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके माइंड में, उनके आंसर्स दे दिए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट ऐसा है जो इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड है और आपके पास बचा हुआ है, देन प्लीज़ शेयर दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देयर। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही जल्दी हम अपने MNS 2022, जी हाँ 2022 एग्ज़ाम के लिए क्लासेस न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एंथुजियाज़म और देखकर हमें बहुत मोटिवेट होते हैं, हम बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, बैच न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, नाउ वी आर विलिंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो बहुत ही जल्दी हम फिर से फ्रेश बैचेस स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे फ्रेश बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, they can WhatsApp me. Thank you for watching this video. Thank you for being with us. Thank you everyone.